Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue our topic of Introduction to Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, which is chapter 1 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Now, what are the basic pharmacokinetic and pharmaceutics or pharmacokinetic model? Understanding how drugs move through and interact with the body is fundamental to effective therapeutic treatment. And this guide explores the mathematical framework that help us predict drug behavior and optimize dosing strategies. So what is the benefit of these pharmacokinetic model? कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ड्रग कैसे इंटरेक्ट करती है बॉडी में और इफेक्टिव थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल हो सकता है एंड व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यानी हाउ वी अप्लाई मैथमेटिक्स टू द ड्रग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज डोजिंग स्ट्रेटजीज़ यानी डोजिंग स्ट्रेटजीज़ को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. नाउ द डायनेमिक नेचर ऑफ द ड्रग एग्जिस्ट इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स विद इन द बॉडी मीन्स मुसलसल मूव कर रही होती है, continuously moving between tissues, fluids, binding with plasma, cellular components and undergoing metabolic transformation. मीन्स एट ए टाइम ये सब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मूवमेंट हो रही है ड्रग की टिश्यू में, फ्लूइड में, ब्लड में, प्लाज्मा में, सेलुलर कंपोनेंट में एंड एट दैट सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो मेटाबोलाइजिंग. These biologic processes are inherently complex with multiple drug event occurring simultaneously throughout the ऑर्गेनिज्म. मीन्स के बॉडी के अंदर ये सारे प्रोसेस जो बायोलॉजिक प्रोसेस जो है वो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल इवेंट्स जो है वो ड्रग के साथ हो रहे होते हैं एट ए टाइम थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ड्रग मूवमेंट विद इन द बॉडी. Such complexity must be carefully considered when designing drug therapy regimen. That is why when we have already discussed in biopharmaceutics in detail कि ये इतने सारे processes एक साथ चल रहे होते हैं और इसी वजह से drug regimen और therapy regimen डिज़ाइन करते वक्त we need to consider all these factors. The infinite intricacy of these biological events necessitate the use of mathematical models. तो इसी वजह से mathematical models क्योंकि mathematics कैन गिव यू एन एस्टिमेशन एंड क्वान्टिफिकेशन, तो इस वजह से इसको वहाँ पर अप्लाई किया जाता है. एंड नॉट ओनली मैथमेटिकल मॉडल्स बट ऑल्सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एस्टिमेट अप्रोप्रिएट ड्रग डोजिंग and predict the time course of therapeutic efficacy for any given dose administration. तो ना सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बल्कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल. सो उसकी बेस पर वी कैन डिसाइड कि अप्रोप्रिएट डोजिंग क्या होगी, टाइम कोर्स क्या होगा ड्रग का, थेरेप्यूटिक एफिकेसी क्या कैसे होगी और डोजिंग इंटरवल या डोज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है. नाउ व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हाइपोथेसिस फ्रेमवर्क. Second, it has predictive power. Third, it has parameter estimation. तो hypothesis framework क्या है? A model represents a hypothesis using mathematical terms to describe quantitative relationship concisely and precisely. होता तो ये हाइपोथेटिकल वर्क है when we apply the mathematics and mathematical principles on this hypothesis तो वो उसको क्वालिफाई करता है और हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कंसाइसली भी बताता है और प्रिसाइजली भी बताता है. दैट इज़ वाई हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट दिस इज हाइपोथेसिस. प्रिडिक्टिव पावर की बात करें तो द प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी डिपेंड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन and development of mathematical functions that parameterize essential kinetic factors. प्रिडिक्टिव पावर इसकी कब होगी? व्हेन वी नो कि इस सिचुएशन पर कौन सा मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई होगा. If we talk about the parameter estimation, key parameters are estimated by fitting the model to experimental data, like fitting with the curves in the graph known as variable in pharmacokinetic analysis. तो उस तरीके से हम उसको estimate भी कर सकते हैं और determine भी कर सकते हैं, mathematics भी apply कर सकते हैं, statistics भी apply करते हैं और उसकी बेस पर हम right calculations कर सकते हैं. A pharmacokinetic parameter represents a constant फॉर ए ड्रग दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा. तो इसमें कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के डिपेंड ऑन टिश्यू सैम्पलिंग मेथड, यानी जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है जिस रेट से ड्रग एलिमिनेट होगी बॉडी से तो वो डिपेंड कर रहा होगा टिश्यू सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैम्पलिंग टाइम क्या है, ड्रग एनालिसिस टेक्निक्स क्या हैं, द प्रिडिक्टिव मॉडल सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस यानी कौन सी मैथमेटिकल मॉडल्स को उस पर
अप्लाई किया जा रहा है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर काउंटेबल एंड कंसिडरेबल हेयर. Now, understanding pharmacokinetic functions. A pharmacokinetic function establishes a relationship between an independent variable and dependent variable, typically through the use of parameter. Considering a scenario where a model predicts drug concentration in the liver 1 hour after administration of a 20 milligram oral dose. तो इस केस में क्या है कि 20 milligram oral dose is independent variable और 1 आवर के बाद जो ड्रग कंसंट्रेशन इन द लेवर है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल कि 20 मिलीग्राम पर वो डिपेंडेंट है कि 20 मिलीग्राम ओरल डोज दे रहे हैं तो लेवर में उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी. 30 मिलीग्राम दे रहे हैं तो क्या होगी, 25 मिलीग्राम दे रहे हैं तो क्या होगी. तो लेवर में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और जो 20 मिलीग्राम ओरल डोज है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी ये कि वो ये कि ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है. डिपेंडेबल वेरिएबल ड्रग कंसंट्रेशन इन द लेवर, जैसा कि मैंने अभी बात की कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रग की डोज और एंड टाइम को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. एंड पैरामीटर क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, के मालूम करना है बेस्ड ऑन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन डेटा. अब इसमें हमारे पास दो तरह का डेटा है. एक तो यानी टाइम का डेटा आ गया कि कितने टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है. ए मॉडल इक्वेशन इज ड्राइव टू प्रेडिक्ट लेवर ड्रग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस वजह से यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मालूम करेंगे कि 20 मिलीग्राम ओरल डोज देने के 1 घंटे के बाद लेवर में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी. द ड्रग कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन elapsed time after dose administration, where the time concentration relationship is defined by pharmacokinetic parameters. तो अब क्या है कि ड्रग कंसंट्रेशन जो होगी वो लेवर में जो होगी वो डिपेंड करेगी कितना टाइम गुजरा है. यानी फॉर एग्जांपल अब 20 मिलीग्राम ओरल डोज दी, उसके बाद आप हाफ एन आवर के बाद यानी 30 मिनट के बाद अगर ड्रग की कंसंट्रेशन लेवर में चेक करते हैं तो वो कुछ और आएगी. 1 आवर के बाद चेक करते हैं तो वो कुछ और आएगी. इसी तरीके से 2 आवर के बाद चेक करते हैं तो वो कुछ और आएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि ड्रग कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन द elapsed टाइम आफ्टर डोज एडमिनिस्ट्रेशन. सो टाइम कंसंट्रेशन रिलेशनशिप को जो है जब हम डिफाइन करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर पे, तो वो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर यानी मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है. नाउ application of pharmacokinetic models. First, predict drug level means estimate plasma, tissue, यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन विद एनी डोजेज रेजिमेन. तो जब मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई होगा इस पर तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में क्या है, टिश्यू में क्या है, यूरिन में ड्रग कंसंट्रेशन क्या है उस पर्टिकुलर डोजेज रेजिमेन पे. कैलकुलेट ऑप्टिमल डोजिंग मीन्स डिटरमिन द ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेन फॉर ईच पेशेंट इंडिविजुअली, कि किसी भी पेशेंट के लिए सबसे मुनासिब डोजेज रेजिमेन क्या होगा. एस्टिमेट एक्यूमुलेशन, कैलकुलेट पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट इन द बॉडी, कि अगर ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेट यानी एलिमिनेट नहीं हो पा रही और जमा हो रही है, तो फिर उससे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और फिर मेटाबोलाइट भी अगर जमा हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, और फिर उससे एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकते हैं. कोरिलेट कंसंट्रेशन मीन्स लिंक ड्रग कंसंट्रेशन विद फार्माकोलॉजिक और टॉक्सिकोलॉजिक एक्टिविटी, कि ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, क्या इतनी रेंज में है कि उससे फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी आएगी, या इतनी बढ़ चुकी है कि अब उससे टॉक्सिकोलॉजिक एक्टिविटी आ सकती है. इसके अलावा एवेल्युएट फार्मूलेशन, असेस डिफरेंसेस इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी बिटवीन फार्मूलेशन मीन्स बायोइक्विवेलेंस और बायोअवेलेबिलिटी. ये भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं कि अगर हम फार्मूलेशन में कोई चेंज करते हैं तो उससे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी यानी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क पड़ सकता है. इसके अलावा डिस्क्राइब फिजियोलॉजिक चेंजेस, एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन फिजियोलॉजी और डिजीज़ अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन. ये भी हम डिटरमिन कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर डिजीज़ स्टेट होगी तो उस वक्त ड्रग का बिहेवियर कैसा होगा, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, एलिमिनेशन कैसे होगी. इसके अलावा एक्सप्लेन इंटरैक्शन, क्लेरिफाई मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, यानी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है फार्माकोकाइनेटिक मैथमेटिकल मॉडल्स की. नाउ टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. एम्पेरिकल मॉडल्स, these models interpolate data and allow empirical formulas to estimate drug level over time. तो ये जो एम्पेरिकल मॉडल्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि हमें एस्टिमेट हेल्प आउट कर रहे हैं एस्टिमेट ड्रग लेवल ओवर टाइम. दे आर जस्टिफाइड व्हेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड आर प्रैक्टिकल फॉर बेसिक प्रिडिक्शन.
लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? नॉट वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन हमें मालूम नहीं होगा। इसके बरक्स हमारे पास जो फिजियोलॉजिकली बेस्ड मॉडल्स हैं वो क्या करेंगे? दीज मॉडल्स अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट actual physiological processes but face significant practical challenges in implementation of data collection। तो इससे ये एम्पेरिकल के कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है इस सेंस में कि एक्चुअल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो हमें मालूम हो सकेंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, रिक्वायर एक्सटेंसिव टिश्यू सैम्पलिंग, ब्लड फ्लो मॉनिटरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टिश्यू कंसंट्रेशन। तो इसमें हमें टिश्यू से ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, यानी बजाय ब्लड के, क्योंकि ब्लड से वेन के ज़रिए ब्लड सैंपल लेना आसान है कि उसमें ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करना आसान है, जो कि हम एम्पेरिक मॉडल में कर रहे हैं। लेकिन फिजियोलॉजिक मॉडल में हमें टिश्यू से कंसंट्रेशन चाहिए, टिश्यू सैम्पलिंग चाहिए, जो कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो इसलिए इसकी जो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें ये चैलेंजेस मौजूद हैं डेटा कलेक्शन के लिए। Compartmental based models, these represents a simple and useful tool in pharmacokinetics, using conceptual compartment to describe drug distribution and elimination। कंपार्टमेंट मॉडल्स में क्या करते हैं, हम ड्रग को डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट या मल्टी कंपार्टमेंट। तो ये जो है मॉडल जो है सबसे ज़्यादा अमेरिकन मॉडल है, इसको अप्लाई किया जाता है। इसके बरक्स जो फिजियोलॉजिक मॉडल है ये जो है वो जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है। एडवांटेजेस क्या हैं इस कंपार्टमेंट मॉडल्स के? दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वाइडली एप्लीकेबल फॉर डिस्क्राइबिंग ड्रग बिहेवियर इन क्लिनिकल सेटिंग। दैट इज़ वाई मोस्टली कंपार्टमेंटल मॉडल को ही, इस तीसरे मॉडल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ अब इसमें कंपार्टमेंट मॉडल को हम थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करते हैं। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले ए वेरी सिंपल एंड यूजफुल टूल इन फार्माकोकाइनेटिक इज द compartmentally based models। Consider a scenario when a drug is administered by intravenous injection and dissolved rapidly in the body fluid। तो हमने एक IV बोलस ड्रग दी जो कि इंट्रावेनस यानी वेन में एंटर हुई और बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डिजॉल्व हो गई। वन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल describing this situation is a tank containing a volume of fluid that is rapidly equilibrated with the drug। तो यानी अज्यूम ये करें कि हमारी बॉडी एक टैंक है जिसके अंदर वो IV ड्रग गई और उसके अंदर जो पानी था उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी जिसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रेटेड विद द ड्रग। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? मॉडल कॉन्सेप्ट इसका क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन टैंक आफ्टर ए गिवन डोज इज गवर्न्ड बाय 2 की पैरामीटर्स दैट डिफाइन दैट सिस्टम्स बिहेवियर। अब टैंक में जो ड्रग गई है यानी हमारी बॉडी में, वो डिपेंड करेगी 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में। पहला क्या है? वॉल्यूम पैरामीटर। क्या है? द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट विल डाइल्यूट द ड्रग, मीन्स के ब्लड में ड्रग डाइल्यूट होगी, रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द फार्माकोकाइनेटिक टर्म। उसी को हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यानी कितने बॉडी फ्लूइड में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है या डिजॉल्व हो गई है दूसरे मानों में। एलिमिनेशन पैरामीटर एक सेकंड पैरामीटर है। द एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग पर यूनिट ऑफ टाइम, किस यूनिट टाइम में यानी पर मिनट में या पर आवर में या पर सेकंड में कितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, दैट विल रिप्रेजेंट द क्लियरेंस ड्रग एंड क्लियरेंस मैकेनिज्म फ्रॉम द सिस्टम। So though this model represents an overly simplistic view of drug disposition in the human body, a drug's pharmacokinetic properties can frequently be described using the fluid-filled tank model called the one compartment open model। तो इस मॉडल को बहुत सिंपल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि इतना सिंप्लीफाइड होता नहीं है ह्यूमन बॉडी में, उसके सर्टेन रीजंस हैं। एनीवे कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी जो है वो एक टैंक है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, यानी ब्लड और बॉडी फ्लूइड जिसमें ड्रग जाएगी और उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, एंड होल बॉडी इज कंसिडर्ड एज वन कंपार्टमेंट मॉडल। So in both the tank and one compartment body model, a fraction of drug that would be continually eliminated as a function of time, और इस टैंक से मुसलसल ड्रग जो होगी वो एलिमिनेट भी होती रहेगी, क्योंकि जो किडनी है जहाँ से वो ड्रग एलिमिनेट होना है वो भी तो इस बॉडी का पार्ट ही है जहाँ से वो एलिमिनेशन का प्रोसेस जारी है, तो पर यूनिट टाइम वहाँ से एलिमिनेट भी हो रही होगी। सो की पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, volume of distribution, elimination rate constant and parameter estimation।
अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगेन रिप्रेजेंट्स द फ्लूइड वॉल्यूम इन द टैंक और कंपार्टमेंट दैट डाइल्यूट्स द ड्रग. So this parameter indicate how widely the drug distributed throughout the body. मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है ड्रग उतना वाइडली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, और जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा ड्रग उतनी कम बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है. यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग जो है वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर आता है तो फिर उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूजुअली 1 कंपार्टमेंट तक है. अगर वो 20 to 25 लीटर के पास आ रहा है, 30 लीटर तक भी आ रहा है तो वो 2 कंपार्टमेंट में है, यानी टिश्यू कंपार्टमेंट में भी है. और अगर वो 35 लीटर या उससे ऊपर आता है लाइक 50 लीटर, 60 लीटर, 70, 80, 100 लीटर, इन इवन सम टाइम द ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव मोर देन 200 लीटर. तो इसका मतलब है ड्रग जो है वो डीपली बॉडी में फ्लूइड में पेनिट्रेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है. एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट describe the rate at which the drug is removed from the body or system per unit of time. So this parameter govern how quickly drug concentration decreases. लाजिम बात है जब ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगी तो उसकी बॉडी में कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. पैरामीटर एस्टिमेशन. These parameters are determined experimentally from drug concentration collected at various time interval following administration of a known dose. तो ये जो यानी इसके अलावा भी हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिफरेंट पैरामीटर हैं ये तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं. यानी अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की मौजूद हैं तो उसके ज़रिए हम और भी बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एस्टिमेट कर सकते हैं. In pharmacokinetics, these parameters are assumed to be constant for a given drug under specific condition. यही वजह है कि हर ड्रग की जो अलग अलग ड्रग्स होती हैं उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती हैं, यानी फिक्स होती हैं. तो वो यही बात कर रहे हैं कि हाफ लाइफ भी एक पैरामीटर है ड्रग की. हाफ लाइफ क्या होती है कि 50% ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड 50% इज नाउ स्टिल इन द बॉडी. तो यानी जो भी हमने ड्रग दी थी वो 50% बॉडी में से एलिमिनेट हो गई और 50% तो वो कितनी देर में हो रही है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है. तो वो हर ड्रग की अपनी कांस्टेंट होती है. इफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द टैंक are determined at various time interval following administration of a known dose, then the volume of the fluid in the tank or compartment and the rate of drug elimination can be estimated with reasonable accuracy. वही बात जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो डिफरेंट टाइम पर अवेलेबल है तो हम उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इसके अलावा भी और बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन और एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ पैरामीटर एस्टिमेशन इन प्रैक्टिस. इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स such as volume of distribution and elimination rate constant are determined experimentally from a set of drug concentration collected over various time known as data point. अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मौजूद है उससे हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के और वीडी मालूम कर सकते हैं. The process involves careful measurement and analysis to ensure accurate parameter estimation. बस ज़रूरी ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम ये चाहते हैं ड्रग का सही निकल कर आए या उसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट सही निकल आए तो फिर जो भी हमने मेजरमेंट ली है और उसका जो एनालिसिस किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो. As the number of parameters required to model the data increase, accurate estimation of these parameters become increasingly more difficult. So this complexity necessitates sophisticated analytical approaches and computational tools. और पैरामीटर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए जो सिंपल कैलकुलेशन से मुश्किल होती जाएगी तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगी. उसके लिए हमारे पास कंप्यूटेशनल टूल्स यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जिसके ज़रिए हम वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं. जिसमें जैसे कि काइनेटिक का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर सिर्फ प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम, जिस टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ली है वो एंटर करेंगे डेटा तो हमारे पास बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे. विद कॉम्प्लेक्स फार्माकोकाइनेटिक मॉडल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर एसेंशियल, जैसा हमने बात की, टू फैसिलिटेट पैरामीटर एस्टिमेशन.
हैंडल्स लार्ज डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट को हैंडल कर सकता है, एंड परफॉर्म आइटरेटिव कैलकुलेशन दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल टू कंप्लीट मैनुअली, यानी जो सिंपल कैलकुलेशन मैनुअली हम करते हैं उससे बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाके ये कंपार्टमेंट मॉडल पर एक बात और कर दूँ कि देखिए, वन कंपार्टमेंट ये होता है कि बॉडी जो है, आमतौर पे बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 3 कंपार्टमेंट में। वन कंपार्टमेंट वो होता है जहाँ पे ड्रग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, वो वन कंपार्टमेंट कहलाता है। टू कंपार्टमेंट वो है जो कि टिश्यू कंपार्टमेंट है, जहाँ पर वन कंपार्टमेंट के मुकाबले में ब्लड सप्लाई तो है, लेकिन सेंट्रल कंपार्टमेंट जो पहला कंपार्टमेंट था वन कंपार्टमेंट, उसके मुकाबले में कम है, तो वो सेकंड कंपार्टमेंट भी कहलाता है और टिश्यू कंपार्टमेंट भी कहलाता है। तो वहाँ पर ड्रग की सप्लाई जो होगी वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है तो ड्रग भी कम जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कम होगी। फिर उसके बाद तीसरा कंपार्टमेंट भी आता है जो कि डीप टिश्यूज़ हैं, जिसमें बोन्स हैं और एडिपोज टिश्यूज़ यानी फैट्स हैं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे कम होती है। तो इस तीसरे कंपार्टमेंट में जो है वो लाजिम बात है, जब ब्लड सप्लाई सबसे कम होगी तो वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही कम होगा। तो इसी वजह से हमने ये बात की कि ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ड्रग का जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में तो जा ही रही है, यानी वन कंपार्टमेंट में, सेकंड कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट में भी जा रही है, और थर्ड कंपार्टमेंट यानी तीसरे कंपार्टमेंट डीप टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़ में भी जा रही है, तो उस वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड लिमिटेशंस पे। Model assumption. Since a model is based on hypothesis and simplifying assumptions, a certain degree of caution is necessary when relying totally on pharmacokinetic model to predict drug action. तो एक तो ये इसमें important consideration है कि मॉडल क्योंकि assumption बेस है, hypothesis है, तो इस वजह से नेसेसरी नहीं है कि हमेशा जो हम ड्रग के हवाले से जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस मॉडल की कैलकुलेशन की बेस पे वो सही हो, कभी कभी वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट नॉट इन ऑल केसेस, इन सम केसेस। क्लिनिकल रियलिटी क्या है? फॉर सम ड्रग्स प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आर नॉट यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग ड्रग एक्टिविटी, सो इंडिविजुअल जेनेटिक डिफरेंसेस, disease state and compensatory body responses may modify the response to the drug. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और ड्रग का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा कि रिपोर्टेड है क्लिनिकल स्टडीज़ में, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनमें जेनेटिक डिफरेंसेस है या डिजीज स्टेट है या कंपनसेटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जिसकी वजह से ड्रग के प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसमें भी डिफरेंसेस आ सकते हैं और ड्रग के रिस्पॉन्स में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? सिंस लिमिटेड डेटा आर जनरली अवेलेबल इन मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन, सो फार्माकोकाइनेटिक डेटा शुड बी इंटरप्रेटेड along with clinical observation rather than replacing sound judgment by the clinicians. तो जब क्लिनिकल सिचुएशन आती है यानी जब पेशेंट होता है तो फार्माकोकाइनेटिक डेटा जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजिंग रेजिमेंट की वो भी अप्लाई होती है, लेकिन जो पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन है उसकी बेस पे भी कुछ ना कुछ जजमेंट की जाती है, तब जाके एक सही अप्रोच डेवलप होती है। सो फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड प्रिडिक्शंस, तो मॉडल जो होते हैं वो हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रिडिक्शंस दे रही हैं, बट इट मस्ट बी अप्लाइड judiciously with the context of comprehensive clinical assessment and individual patient factors। तो ये जो है वो की पॉइंट है कि हम टोटली जो है वो उस कैलकुलेशन पे रिप्लाई ना करें, बल्कि क्लिनिकल असेसमेंट और इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर्स जो हैं, लाइक जैसे हमने ये क्लिनिकल रियलिटी में बात की कि यहाँ पर जो सिचुएशन है कि कुछ जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, डिजीज़ स्टेट या बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से ड्रग का रिस्पॉन्स मॉडिफाई हो जाता है। दैट ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी अंडर कंसिडरेशन व्हेन एवर वी आर अप्लाइंग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। तो इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।